Hello students, I hope you all are doing well. So starting up with the next type of reaction, that is oxidation and reduction. Whenever oxidation takes place, we always observe that reduction also takes place side by side. That's why these reactions are also known as redox reactions. Redox, the word itself says reduction, ऑक्सीडेशन. जब भी ये रिएक्शंस होती हैं जिसमें फॉर एग्जांपल टेक एग्जांपल ऑफ एनी रिएक्शन विच दे आर टू रिएक्टेंट्स, ठीक है, टू रिएक्टेंट्स हैं वहाँ पे. अगर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडेशन शो करेगा देन द अदर इज गोइंग टू शो रिडक्शन. Okay, these reactions are known as redox reactions. Now oxidation and reductions, you are very much familiar with these terms because when we started with the life process I told you that time as well. Oxidation, whenever you see this word, it means gain of oxygen and reduction is loss of oxygen. Now for example, you take copper. There is an activity over here, activity 1.11. In that case, what you have to do is just take a china dish, and in that china dish you just have to take copper powder. I'll just show you over here. Okay, look over here. There is a china dish. In this china dish you have got copper over here. Okay, copper powder, you have to take 1 gram of copper powder. When you will start heating it, you will observe that this copper powder has changed. Okay, the color of this has changed, and it means what happens, the color has changed from brown to black. The reason is oxygen is added to this copper, resulting in the formation of copper oxide. Look over here, copper है. Okay, I told you what happens over here. You have to take a china dish, copper ले लिया जो कि brown color का powder था. इसको हमने heat करना start किया. We are heating it, since we are heating it in the presence of oxygen, it's getting burnt. जब भी हम किसी चीज़ को हीट करते हैं, मोस्टली ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड ओवर देयर. सो हम इसको हीट करेंगे, देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व, दिस ब्लैक कलर हैज चेंज टू दिस ब्राउन कलर हैज चेंज टू ब्लैक कलर. इज बिकॉज देयर इज अ कोटिंग ऑफ ऑक्सीजन ओवर देयर, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड. तो ये कॉपर के साथ क्या ऐड हो गया, व्हाट इज बीइंग एडेड, ऑक्सीजन. इट मीन्स कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड. ओके, किसी भी सब्सटेंस के साथ अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, हम कहते हैं वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया, बिकॉज देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. Now next thing, just it's a follow up of that particular reaction only that we have just done. अब हमारा कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है. कॉपर ऑक्साइड कैसे बन गया, जो वो ब्राउन कलर का था उसके ऊपर कोटिंग आ गई ब्लैक कलर की. ओके, दैट्स कॉल्ड कॉपर ऑक्साइड. अगर उसी के ऊपर से हम हाइड्रोजन गैस पास कर दें, ओके, दिस इज हीटेड कॉपर ऑक्साइड, वो हॉट है ना कॉपर ऑक्साइड, सो दैट्स व्हाई हीट इज मेंशन्ड ओवर हियर. वहीं पे अगर हम हाइड्रोजन गैस पास कर दें, देन व्हाट विल हैपन, दिस ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड विल अगेन चेंज टू ब्राउन कलर बिकॉज द रिवर्स रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. रिएक्शन फिर रिवर्स हो गई. इसका मतलब जैसे ही हमने हाइड्रोजन गैस पास करी, इसके ऊपर से ऑक्सीजन की लेयर हट गई. अगेन दिस कॉपर ऑक्साइड हैज चेंज टू कॉपर. सो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हो गया, दिस कॉपर ऑक्साइड हैज लॉस्ट ऑक्सीजन. इसके यहाँ से ऑक्सीजन चली गई, सो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन. It means copper oxide has got reduced. Okay, so यहाँ पे copper oxide reduced हो गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन इसका ऐड हो गया, तो it means this hydrogen has got oxidized. ठीक है. So see in this reaction also दोनों चीज़ें हो रही हैं. We'll move to the next thing. Look over here, the same reaction. Copper oxide का ऑक्सीजन हट गया है और क्या बन गया ये कॉपर. इट मीन्स ये रिडक्शन हो गई, लॉस ऑफ ऑक्सीजन. यही जो हाइड्रोजन गैस है इसके साथ ऑक्सीजन की एडिशन हो गई, there is gain of oxygen. It means कोई भी रिएक्टेंट अगर ऑक्सीजन को लूज करता है तो दूसरा वाला रिएक्टेंट उसको गेन कर लेता है. ठीक है. इट मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दे गो हैंड इन हैंड. सो दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल देम एज redox reaction. RED means reduction, OX means oxidation, redox reactions. Okay, activity we have already done. Now that's very clear to you. This is all about the activity. Okay, क्या किया हमने एक्टिविटी में, we just took a china dish. In that china dish we put 1 gram of copper. उसको हीट करना स्टार्ट किया. वो कॉपर ब्राउन कलर का था. जैसे हम उसको हीट करते वी विल नोट दैट कॉपर हैज चेंज टू ब्लैक कलर, क्योंकि जो आउटसाइड सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन उसके ऊपर कोटिंग करके देयर इज अ रिएक्शन दैट हैज टेकन प्लेस. कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज. अगर मैं वही कॉपर ऑक्साइड जो कि ऑक्सीडाइज्ड कॉपर है उसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास कर दूंगी तो रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी. क्या हो जाएगा, वही जो ब्लैक कलर की कोटिंग उसके ऊपर आई है वो हट जाएगी. इट विल अगेन चेंज टू ब्राउन कलर, क्योंकि मेरा वो कॉपर ऑक्साइड अब क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया है और वो क्या बन जाता है, कॉपर. लुक ओवर हियर, दिस वन. सो इट मीन्स यू आर क्लियर विद द थिंग. नाउ देयर इज वन मोर रिएक्शन. सो व्हाट आई सम अप ओवर हियर, oxidation means addition of
oxygen. Reduction means loss of oxygen. Now there is one more example over here. Zinc oxide and carbon we have taken over here. Okay, now what happens over here? Zinc will, when we look at the reaction, zinc has lost this oxygen and is changed to zinc. ये सिर्फ अकेला जिंक मेटल रह गया फ्रॉम जिंक ऑक्साइड. तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज ओवर हियर, सो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन. लुक एट दिस कार्बन, ये क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO बन गया. ये इसके साथ क्या ऐड हो गया? ऑक्सीजन. तो इसके इट मीन्स to this carbon oxygen is being added, so that's why it's known as oxidation, that is gain of oxygen. Now moving on further with another reaction. In this reaction you will encounter one more definition of oxidation and reduction. Now look over here, this is manganese oxide. It will react with hydrogen chloride. Okay, this is hydrogen chloride gas. So जब ये दोनों react करते हैं, look over here, manganese oxide has changed to manganese chloride. Okay, इट मीन्स इसके साथ जो ऑक्सीजन था वो चला गया यहाँ से. इट्स नॉट सीन ओवर हियर इन द प्रोडक्ट्स. सो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, दैट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन. नाउ मूविंग ऑन विद द प्रीवियस थिंग, लुक ओवर हियर, हाइड्रोजन क्लोराइड. अब जो हम ये हाइड्रोजन क्लोराइड देखते हैं तो ये क्या रह गया? सिर्फ क्लोरीन गैस रह गई हमारे पास यहाँ पे. इट मीन्स इसका ये H हट जाता है यहाँ से. ओके, सो लुक ओवर हियर, वन मोर थिंग आई हैव नोटिस्ड, इसको हम क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडेशन. देयर आर टू डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन होती है, देयर इज गेन ऑफ ऑक्सीजन. और अगर ये गेन ऑफ ऑक्सीजन की बजाय इंस्टेड ऑफ दिस गेन ऑफ ऑक्सीजन इफ वी से देयर इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन, देन ऑल्सो इट मीन्स देयर इज ऑक्सीडेशन गोइंग ऑन. सो व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर? HCl क्या बन गया? सिर्फ Cl रह गया, हाइड्रोजन हट गया यहाँ से. ओके, इसका मतलब क्या हो गई? कौन सा प्रोसीजर हो गया? अगेन देयर इज ऑक्सीडेशन, बिकॉज लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन. डोंट गेट कन्फ्यूज ओवर हियर कि यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लग गया. कीप इन माइंड क्लोरीन था, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की क्या हटता है, क्या लगता है. तो HCl में से क्या हट रहा है? हाइड्रोजन ही हटेगा, क्योंकि हम का क्या बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की. सो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ओनली वी आर डिफाइनिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो यहाँ पे देखो क्या था, या हम ऑक्सीजन लेंगे या हम लेंगे हाइड्रोजन. यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है तो दैट्स व्हाई वी कॉलिंग इट एज रिडक्शन. यहाँ पे हम किसकी बात करें? यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो क्या चीज़ हमारे पास? हाइड्रोजन. और यहाँ से हाइड्रोजन हट गया तो वी आर सेइंग इट एज ऑक्सीडेशन. सो दिस इज द सम अप ऑफ द above thing. Oxidation is gain of oxygen, or we can say loss of hydrogen. Next is reduction. Reduction is called as loss of oxygen or gain of hydrogen. Okay, now just recall activity 1.1. You remember we took magnesium ribbon in the starting of this chapter. Magnesium ribbon, we started heating that magnesium ribbon in the presence of oxygen. So what we got? Magnesium oxide. तो हमारा ये magnesium क्या बन गया? magnesium oxide. तो look over this reaction. Is this oxidation or reduction? क्या ऐड हो गया यहाँ पे? ऑक्सीजन. सो दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सो इट मीन्स मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. सो नाउ विल सी द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन डेली लाइफ. हम देखेंगे ये अप्लाई कहाँ पे होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारी डेली लाइफ पे. सो फर्स्ट एग्जांपल इज करोजन. अब करोजन होता क्या है? सी वी सी मेटल्स अराउंड अस. अब मेटल के ऊपर अगर आसपास का कोई मॉइस्चर, कोई एसिड, आसपास की चीज़ों का अगर उस पर अटैक हो जाता है, ठीक है, और उस मेटल सरफेस के ऊपर इफेक्ट आने लग जाता है, वो मेटल सरफेस वी जस्ट से इट एज कि इट इज बीइंग अटैक्ड, या हम कहते हैं इट इज ईटन अवे. ओके, दिस इज नोन एज कोरोजन. एंड देन पर्टिकुलर मेटल, वो प्योर मेटल नहीं रहता, वो मेटल क्या बन जाता है? कंपाउंड बन जाते हैं, क्योंकि उसके साथ क्या एडिशन होगी? कोई मॉइस्चर ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गई, या कोई एसिड ऐड हो जाता है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का. ओके, सो यू हैव यू सीन दैट कॉपर. हमने कॉपर की बॉटल्स देखी होंगी. नाउडेज इट्स वेरी कॉमन द कॉपर बॉटल्स, जो तांबे की बॉटल्स बहुत पॉपुलर सी हैं नाउडेज. और यू माइट हैव सीन कॉपर जग्स. तो हम क्या नोट करते हैं? वहाँ पे ग्रीन कलर की कोटिंग दिखती है हमें आफ्टर सम टाइम. इट मीन्स इट्स बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग मॉइस्चर एंड द ऑक्सीजन दैट्स प्रेजेंट दैट हैज चेंज दैट प्रॉपर कॉपर टू सम कंपाउंड ऑफ कॉपर. देन यू ऑब्जर्व सिल्वर ऑल्सो. सिल्वर जो चांदी होती है वो भी काली पड़ जाती है, बिकॉज इट्स नॉट दैट प्योर सिल्वर राइट नाउ, इट हैज चेंज टू इट्स कंपाउंड. The basic example that I'll come to is iron. Okay, हम iron को अगर moisture में रखते हैं, फिर keep iron in some moisture. What we observe after some time? If iron is kept in moisture and oxygen, then we observe that iron के ऊपर क्या लग जाता है? Rust. Okay, so rusting is an example of corrosion. जब भी iron की corrosion होती है, we give a term that is called rusting. So what is rusting? It's a process in which reddish brown powder. What is that reddish brown powder? It's hydrated iron oxide.
इट मीन्स हमारे पास आयरन तो पहले से था ही, आयरन के ऊपर किसका इफेक्ट हो गया, ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट हैज चेंज टू ऑक्साइड, और साथ में मॉइस्चर ऑफ द एयर, दैट्स हाइड्रेटेड। तो हमारे पास आयरन की बजाय अब क्या रह गया, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इन द एयर। ठीक है, तो दिस इज समटाइम्स आस्क कि आयरन का जो कोरोजन होता है, व्हाट डू वी गिव दैट टर्म, इट्स नॉट, द आंसर इज रस्टिंग। Now this corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron railings, ships, objects made up of iron. So ये corrosion काफ़ी इफेक्ट करती है जो metal objects होते हैं, okay? Corrosion काफ़ी इफेक्ट कर जाती है। Next application that we observe in case of corrosion is, next application that we observe in case of oxidation reduction is rancidity. ओके, ये भी नॉर्मली वी सी इन डेली लाइफ, व्हाट वी ऑब्जर्व, हम जब खाना लेते हैं, ओके, आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व इन सर्टेन फूड वी हैव सम स्मेल। हम कहते हैं ना फूड स्पॉइल हो गया, उसमें से स्मेल आने लग गई, उसका टेस्ट खराब हो गया, इट्स बिकॉज दैट फूड हैज़ अंडरगोन ऑक्सीडेशन। उस फूड के अंदर जो उसके ऑयल्स या फैट्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन एडअप हो जाती है, जो उसके फैट्स होता है या ऑयल होता है जो फूड के अंदर, that is, this term is known as rancidity. वो that it's the smell is that खट्टापन, we observe that sour taste in that smell of the food because उसका जो फैट है उस फूड में या उसमें जो ऑयल्स हैं उसमें ऑक्सीजन एडअप हो गई, they are being oxidized. So what we are studying, oxidation and reduction in daily life, the term is given to this thing is rancidity. Okay, इसको हम कहते हैं food has turned rancid, कि उसके अंदर जो फैट और ऑयल है वो ऑक्सीडाइज हो गया। अब इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, सो टू प्रिवेंट दिस ऑक्सीडेशन, टू प्रिवेंट कि उसमें जो ऑयल या फैट है उसकी ऑक्सीडेशन ना हो, हम क्या ऐड करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, वी ऐड सर्टेन एंटीऑक्सीडेंट्स, लाइक यू माइट हैव ऑब्जर्व द चिप्स आर देयर, लेज एंड ऑल, नो, इन दोज पैकेट्स ऑफ लेज और चिप्स दे आर नाइट्रोजन गैस, ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, नाइट्रोजन गैस रहे, बिकॉज नाइट्रोजन गैस इज नॉट दैट रिएक्टिव, वो इनर्ट होती है, ऑक्सीजन की जगह ले लेती है वो। ठीक है, तो ऑक्सीजन होगी ही नहीं तो चिप्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो वो पैकेट में अगर बंद रहेंगे चिप्स तो दे विल बी सेफ, ओके, दे वोंट अंडरगो रैंसिडिटी। नेक्स्ट थिंग इज समटाइम्स वी कीप द फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, हम उनको एयर टाइट कंटेनर्स में भी रखते हैं, वी जस्ट डू इट सो दैट वी कैन स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, ताकि ऑक्सीजन के साथ कम इंटरेक्शन हो और हमारा खाना खराब होने से बच जाए, मीन्स हमारे खाने की ऑक्सीडेशन ना हो। So we are done with all the types of reaction. I hope you all got those types of reactions. For any doubt, please feel free to ask me on my personal WhatsApp number. Thank you so much. Stay home, stay safe. Thanks a lot, everyone.